So, good evening, friends. Here we have the paper review of July 2021 exams for strategic management, and we can have a look at the question paper and try to understand what it was all about and how it appeared. So, let us have a small discussion on this, that whether it covered everything and what the institute wanted to do. So, let's go on that. Sir, the paper was about EIS and SM as discussed, and I will be discussing the strategic management part of 50 marks. So, if you can have a look, the first 5 questions are from EIS. Second section here, from here it starts for strategic management SM. July 21 exams. Jan 21 में paper was purely case study based, only one theory question was there. November 20, one question was case study application was there, all other questions were theory. So this time it was, people were scared actually, how do we do this now? So now this time they came up with 5 questions. 6th numbered question is compulsory and another 3 questions out of 4 were to be done. So 6th question was based on a bit of case study. Albela Foods and Just Be Foods are successfully competing chain of restaurants in India. Albela is known for their innovative approach, which resulted in good revenues. On the other hand, Just Be is slow in responding to the environmental change. The initial stages of COVID-19 and ensuring strict lockdown had an adverse impact. देख लीजिए किस लेवल के questions हैं. They are asking about awareness in current situation. Okay. ठीक है. So the initial stages of COVID-19 pandemic and ensuring strict lockdown had an adverse impact. So realizing its severity and future consequences, Albela Foods immediately chalked out its post-lockdown strategies. तो अब ये प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है? सर प्रोएक्टिव है. Contactless dining, new category of foods, boosting immunity, improving safety measures, introducing online food delivery app. बराबर. Seeing the positive buzz around these measures taken by Albela Food, Just Be Foods also thinks to introduce these measures. Now identify the strategic approach taken by Albela Foods and Just Be Foods. अब यहाँ strategic approach कौन सी है? Reactive? बराबर. एक पॉइंट ये भी आएगा, और आपको अगर याद हो तो 3 वर्ड्स होते हैं आप लोगों ने जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में पढ़े हैं. प्रोसीड विथ कॉशन, लीस्ट रेजिस्टेंस एंड डायनामिक रिस्पॉन्स. ऐसे कुछ याद आता है? वो भी याद, वो भी काम आएगा आपको, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपसे 3 चीज़ें पूछी. उसने देखो 5 नंबर का क्वेश्चन रखा है, 1, 3 एंड 1. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे. डिस्कस दिस अप्रोच, ये 3 नंबर की. विच स्ट्रैटेजिक अप्रोच इज बेटर एंड वाई. तो ही इज आस्किंग टू अप्लाई द नॉलेज. ओके. अब इसके अंदर कोई बहुत हाई फाई नहीं है. इट्स क्लियर कट दैट यू आर कॉपिंग, यू आर ट्राइंग टू बिकम इनोवेटिव इमिटेटर, यू आर लीड फ्रॉम द फ्रंट. पहला है लीड फ्रॉम द फ्रंट, दूसरा है फॉलो द लीडर, एंड थर्ड होता है लो कॉस्ट प्रोड्यूसर. तो ये लीड फ्रॉम द फ्रंट था, अल्बेला फूड्स. ठीक है. दूसरा है फॉलो द लीडर एंड थर्ड इज लो कॉस्ट प्रोड्यूसर. तो ये फॉलो द लीडर है अप्रोच. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी मिलेगी आपको चैप्टर में. चैप्टर नंबर 6 में मैं दिखा देता हूँ आपको आपके नोट्स ओपन करके. डोंट वरी. आप लोगों को लगेगा ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है. ये रही अप्रोचेस. देखिए मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर 6 में. When we go to chapter 6 we get this. It's the game is of just identifying everything, कि भाई मेरे को ये याद आ रहा है कि नहीं उस टाइम पर. दैट्स इट. ये देखो, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन के अंदर मिलेगा आपको, R&D में. ये लीड फ्रॉम द फ्रंट, फॉलो द लीडर एंड लो कॉस्ट प्रोड्यूसर.
बराबर। ये देखो क्या लिख रहा है, बी एन इनोवेटिव इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, मिनिमाइजिंग द रिस्क कॉस्ट। इट इज अबाउट अलाउइंग अ पाइनियर फर्म टू डेवलप द फर्स्ट वर्जन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड देन टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ मार्केट एग्जिस्ट्स। तो हमको लीड फ्रॉम द फ्रंट और फॉलो द लीडर करना रहता है। ये आता हमारा जो सेकंड वाला है जस्ट बी फूड्स, वो आता है फॉलो द लीडर अप्रोच में। करेक्ट। उसके बाद देखिए, अब कुछ बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 7A आप मेरे को पढ़ के बताएं जरा। A manufacturing company is in direct competition with 15 companies at national level. Head of marketing department of this company wishes to study the market position of rival companies by grouping them into like positions. Sir, rival companies grouping them into like position. Name the tool that may be used by him or her. So the tool is strategic group mapping, and explain the procedure may be used to implement the techniques. So sir, the tool is strategic group mapping and you have to write 4 steps. Take a 2 variable map, plot the firms on 2 different axes on different criteria, and then assign every firm in each section with a specific circle based on the revenue share which they have in that circles. Hello. तो अब आप 4 स्टेप लिखिए और एक उसको लिखे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सर अपने नोट्स में किधर है? अपने नोट्स में एग्जैक्टली प्लॉटेड बना के रखा है अपन ने इसको, ये रहा सर, चैप्टर नंबर 2 ये रहा, rival firms with similar competitive approaches and positions in the market. And then the steps were these, sir. Strategic group mapping. Identify the competitive characteristics, plot the firms on a 2 variable map, assign firms that fall under the same similar category, and then draw circles on each strategic group map proportional to the size of the group's respective share of the total industry revenue. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो अभी वाला मॉड्यूल में 21 ऑनवर्ड्स आया उसमें स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप बराबर बन के आया, नहीं तो इससे पहले गलत बन के आ रहा था। करेक्ट। आप सिंपल सा कैसा 2 वेरिएबल मैप बना के दे दो ना उनको, क्या दिक्कत है? 2 क्राइटेरिया लीजिए कोई से भी और ऐसा बना के उनको दे दीजिए। कैसा हाई एंड लो एंड हाई एंड लो, लोकल, प्राइस, नेशनल, रीजनल, जो भी आपको सही लगे। करेक्ट। और आइए देखते हैं ज़रा। सो मतलब अब आपको मेरे को पता है कि कहाँ से पूछ रहे हैं। तो सर दिस इज चैप्टर 2 स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। Strategic decisions are different in nature than all other decisions. In the light of this, explain major dimension of strategic management, strategic decisions. ये major dimension of strategic decision making आपके फर्स्ट चैप्टर का है। Strategic decision making. It is different from day-to-day decision making on following grounds. It has a long-term impact. It has got multi-product, multi-business consequences. The decisions are going to affect the long-term prosperity of the firm. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग और इसमें अंतर रहता है। बराबर। तो स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग याद आ रहा है कि नहीं? अरे सर कहाँ याद आ रहा है? मार्क कराऊं? निकलवा के मार्क कराऊं? स्कूल वाली आदत छोड़ दो। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग फ्रॉम डे टू डे डिसीजन मेकिंग से अंतर ये लो।
ये रहा, ये 5 पॉइंट्स, ये आपके चैप्टर 3 में है, चैप्टर 3 में है ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट के साथ। ये रहे, अभी चैप्टर 3 इज येट टू बी कवर्ड विद अस। आपका मेरा चैप्टर 3 कवरेज बाकी है अभी। मैंने देखो उस समय भी पहले भी बताया था कि 3 टाइम एग्जाम में पूछ चुके हूँ, और अब ये चौथी बार हो गया। अब मैं इसको 3 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स कर सकता हूँ। मैंने लिख भी रखा है 3 टाइम एग्जाम में आज है, देख लो। उसके बाद आप अगला देखो, आप एक मिनट पूरा देखते चलो तो आपको एक थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि अपन भजिए नहीं तल रहे क्लास में बैठ के। क्वेश्चन 8A का जवाब बता दो आप। द CEO ऑफ अ टेक्सटाइल मिल इज कन्विंस्ड दैट इज लॉस मेकिंग कंपनी कैन बी टर्न अराउंड, सजेस्ट एन एक्शन प्लान फॉर अ टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का एक्शन प्लान, लड्डू क्या, व्हाट लड्डू? सर कल ही अपन ने टर्न अराउंड पढ़ा है, 5 स्टेप्स हैं। और बच्चे पता है जल्दबाजी में क्या लिख के आएंगे? बच्चे जल्दबाजी में मट पॉइंट लिख के आएंगे। मट पॉइंट नहीं चाहिए, याद रखना। मट पॉइंट तो रीजंस हैं, ये है। उसके बाद क्या करना है? असेस द सिचुएशन, डेवलप अ प्लान, इम्प्लीमेंट द प्लान, रिस्ट्रक्चर द बिजनेस एंड रिटर्न टू नॉर्मल। ये 5 चीज़ों के 5 नंबर थे। अब आपको लग रहा है कि अपन क्लास में टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये कल या परसों ही पढ़ा है अपन ने अपने डिस्कशन के अंदर। कल ही पढ़ा है, बराबर। तो ये है चैप्टर 4। उसके बाद 8B, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अपॉन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में क्या करना था बताओ सर? 5 Ws याद आ गया? हु आर दे, what are their products and services, what is their strength, what is their weakness and what to do with this information। याद आ गया? बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी काम करती है। वहां पे कॉफी शॉप वाले अपने वो कॉफी वाले फोटो बने हुए हैं, दिखाऊं सर? चैप्टर 2 सर, चैप्टर 2 की शुरुआत में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ये बना हुआ है सर। ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप था, मैंने बोला था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ये है, इसकी डेफिनेशन ये रही, और उसके बाद ये रहा नीचे। Who are they, what are their product service, what is their strength, what is their weakness, what to do with this information। अब अगर इसके बाद भी अगर बच्चे नंबर नहीं लाएंगे तो फिर मेरी क्या गलती है बताओ आप? मैं क्या करूं इससे ज़्यादा? बच्चों को लगता है कि ऐसे ही आएगा क्या? अब आप एक बार बताओ। अभी क्वेश्चन 9A भी आपने ऑलमोस्ट कर चुका रखा है। देयर आर मेनी कंपनीज इन द मार्केट ऑफरिंग कोविड वैक्सीन, एनालाइज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब ये पोर्टर 5 फोर्सेज है जो अपन अभी डिस्कशन चालू करने वाले हैं। पोर्टर 5 फोर्सेज आपने पेज नंबर पढ़ के रखा है, मेरा और आपका डिस्कशन है अभी, ठीक है? सो दिस इज अगेन चैप्टर 4। अभी ये चैप्टर 4 पोर्टर 5 फोर्सेस। अच्छा, उसका नेक्स्ट वाला लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी है, इश्यूज टू बी रिजॉल्व बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एन इफेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। तो लॉजिस्टिक्स इज चैप्टर 6 फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। फंक्शनल स्ट्रैटेजी, बराबर।
ये भी अपने नोट्स में है, मैं आपको भी मैच करा के दे सकता हूँ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर। ये चैप्टर नंबर 8 में है, इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। उसमें एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन है उसको वो समझा रहा है, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। और इसके लिए मैंने देखो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर दोनों के दोनों बना के रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगेन दिस इज चैप्टर 8, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये भी चैप्टर 8 है, अभी दिखा रहा हूँ आपको मैं दोनों। एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिचर्ड रूमेल क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटेजी ऑडिट, ये भी चैप्टर 8 है। हाँ सॉरी, पोर्टर 5 फोर्सेस का मैंने चैप्टर नंबर गलत बोल दिया, पोर्टर 5 फोर्सेस चैप्टर 5 में है। तो मैं आपको लॉजिस्टिक्स बताता हूँ 6, और 8th में आपको एंटरप्रेन्योर, बीपीआर और स्ट्रैटेजी ऑडिट ये बताता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आप मेरे साथ देखो क्या क्या बताना है मेरे को। आपको एक बनाना लॉजिस्टिक्स, बीपीआर, एंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर, स्ट्रैटेजी ऑडिट। ये देखो, सबसे लास्ट पेज पर है स्ट्रैटेजी ऑडिट। ये देखो, रिचर्ड रूमेल्स क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटेजी ऑडिट, ये रिचर्ड रूमेल्स क्राइटेरिया मतलब लास्ट पेज, रिचर्ड रूमेल्स क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटेजी ऑडिट। और ये मैं बच्चों को शॉर्ट फॉर्म तक याद करवाया, CCFA, कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फीजिबिलिटी, एडवांटेज, CCFA। ये रहा, ये देख लो, आपसे पहले ये क्लास जब पढ़ाई है तो उसमें CCFA बना के रखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म तक, ठीक है। फिर पेज नंबर इसमें उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इन ये BPR जो क्वेश्चन था ना, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की प्रोसेस, वो ये रही। ये रहा BPR की प्रोसेस। कौन सा हो गया ये, लिख दूं इसके पास में, जुलाई 21, रिचर्ड रूमेल क्राइटेरिया। आगे क्या लिखूं, जुलाई 21। अब इसके बाद आप चलो ऊपर, वो एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर भी समझा देता हूँ। चैप्टर 8 नहीं, शायद चैप्टर 7 है, 1 मिनट में बता देता हूँ बस। हाँ, वो चैप्टर 8 नहीं, चैप्टर 7 है। ये चैप्टर 7 के एंड में देखो, वो फोटो भी आएगा इंटरप्रेन्योर का आपको, और ओला वगैरह भी लिखा हुआ होगा। ये रहा डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर। ये रहा व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर का डिफरेंस भी है, ये रहा यहाँ से। ये फोटो है वहां पर ताकि बच्चों को याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा बचा, एक लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स भी दिखाता हूँ आपको, रुको। लॉजिस्टिक्स आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज में, और उसमें भी लॉजिस्टिक्स में मैंने फोटो वोटो बना के रखा है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये देखो, ये लॉजिस्टिक्स पूरा, टू इम्प्लीमेंट अ लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी। मतलब मेरे हिसाब से राइट नाउ
आपका मेरा कोर्स अभी जितना हुआ है उसके हिसाब से वी हैव डन हाफ ऑफ आवर एसएम एंड हाफ ऑफ द पेपर इज अटेम्प्टेबल बाय यू. These are 35 mark questions, okay? 15 marks questions are from MCQs, and MCQs, the feedback is, sir, we have given enough of MCQs in our notes to you, which you can cover up. See, the only thing to pass in exams is one. Let me be very clear. ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, but you have to remember all this till the exams. So the only way out is continuously reading this again and again and becoming friendly with this vocabulary and the language. 11th 12th CBSE पास आउट बच्चों को हमेशा ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये लिख लेंगे. नहीं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट हैज़ टू बी रेड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज डाउनलोड द ऐप विच आई हैव गिवन यू, इकोनॉमिक्स फॉर CSCS. उसके अंदर SM के मैंने आपको समरी नोट्स दिए हैं. मैं फिर से बोल रहा हूँ, those summary slides should be reviewed on a regular basis. आप लोगों को प्रॉब्लम ये होगा, देख के लग रहा है कि पढ़ा हुआ है, पर इमीडिएटली स्ट्राइक करने के लिए जब आपको वोकैबुलरी चाहिए होगी, द सॉल्यूशन इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट, प्रैक्टिस इट आउट, प्रैक्टिस इट आउट एंड प्रैक्टिस इट आउट. Correct? So please make sure you do work hard and you can pass in this exam. It's not doable. The only thing is, if you are able to retain things and revise nicely one day before, then you can easily clear this exam. The catch is you have to continuously be language friendly, express nicely, write neatly and use appropriate vocabulary. That's the key of passing this exam. Okay, thank you.